everyone. A very logical day to all of you. And here we are with the first editorial of the Indian Express of January 30. Right? 1st of January से start हुआ था, New Year से start हुआ था. एक महीना कैसे निकल गया? How time flies, right? We don't know, but yes, it is going to fly. So as long as we catch hold of this time, and every minute we are able to come up with something constructive, that is what we need to understand. So the editorial today, Indian Express, the first editorial that is small and smart. Alliteration हो जाता है हमारे पास. SM का अगर हम word जैसे repetitive use of the same consonant sound becomes an example of alliteration, right? थोड़ा सा है. अब देखो एक पॉइंट और है नोट करने की. राइटर जो होते हैं कितने स्मार्ट होते हैं. स्मार्ट भी होते हैं. उन्होंने क्योंकि स्मॉल एंड स्मार्ट किया है तो हेडिंग में कैपिटल नहीं यूज किया है. Otherwise, most of the time the headings are full capital letters, right? Usually it is so. एक दो बार जाके check कर लेना. But now we have small and smart, so let's see what this is all about. So the reading part consists of, artificial intelligence. Fine. So if artificial intelligence is a new battlefield, when was the first shot fired? The author starts with a question, a very different way of asking or coming up with the आर्टिकल राइटिंग, राइट? ये होना चाहिए कि कैची होता है बिल्कुल. सो इफ से उसने स्टार्ट कर दिया तो ऑलरेडी एक केस, एक व्यू दिखा रहा है, वो एक सिनेरियो दिखा रहा है. ठीक है, देखते हैं. सो इफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द न्यू बैटलफील्ड, व्हेन वाज द फर्स्ट शॉट फायर्ड? वाज इट लास्ट वीक when a Chinese AI lab released a large language model developed at a fraction of the cost of the ones built by Silicon City, and yet capable of beating these same models on several benchmarks? Again, a question. Or was it this week when Wall Street opened to a bloodbath with US stocks losing a reported $1 trillion in value, including chipmaker Nvidia's 600 billion drop? Perhaps it can be traced way back to October 2022 when the US, in an effort to retain its edge, banned the export to China of advanced chips used for AI development. तीन questions हैं. तीन उससे कैसे क्या कि आखिर अगर ये एक बैटलफील्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आखिर लड़ाई कब से चालू हुई? मिसाइल पहले किसने छोड़ी, कहां और कब? तीन क्वेश्चंस उससे मेंशन किए. वन, when China came up with its AI LLM, right? Second, when the stocks of US like plunged, ड्रास्टिक फॉल जब होता है उसे प्लंज कहेंगे. और थर्ड, वाज इट वे बैक इन 2022 जब उन्होंने मना कर दिया कि हम ये एआई की जो एडवांस चिप्स है वो नहीं देंगे चाइना को? काम तो वहीं से शुरू हुआ है. दिस इज व्हाट द ऑथर इज इंडिकेटिंग कि जब यूएस ने मना किया कि वी आर नॉट गोइंग टू गिव दिस, इसे बैन लगा दिया, तो चाइना का अपना दिमाग चलने लगा. यूएस नहीं दे रहा है, नो प्रॉब्लम, मैं तो ये करके रहूंगा. ये होती है जिद. देखो, as questions pile up on the implications of China's DeepSeek R1 and the future of AI, one thing is clear. America's lead in the race has shrunk considerably. One thing is clear means this is one point that the author is leading us to. क्या कि अब दौड़ में कौन आ गया है? चाइना. यूएस की पकड़ मजबूत नहीं रही. That is what the author is indicating. So it seems to have happened, moreover, in the blink of an eye. Catching the US and Silicon Valley has indeed the world completely by surprise. तो सिर्फ यूएस सरप्राइज नहीं है, सिर्फ सिलिकॉन वैली सरप्राइज नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया अचंभित है. द होल कंट्री, द होल वर्ल्ड इज सरप्राइज्ड. व्हाई? बिकॉज व्हाट डिड चाइना डू वाज इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई. पलक झपकते. ठीक है. So let's see. Now, yet, it is not as if DeepSeek with a logo featuring a blue whale surfaced out of nowhere. A minnow compared to the big four in China's tech sector, Baidu, Alibaba, Tencent, and Xiaomi. DeepSeek made ripples last year when it released its V3 model. ये उन्होंने last year कर लिया था. ठीक है, made ripples. Ripples हम पहले वर्ड समझ भी चुके हैं डिस्कशन में. यहाँ पे made ripples का मतलब क्या हुआ कि पूरी दुनिया में खलबली मच गई जब चाइना ने V3 मॉडल दिया पिछले साल.
Now, which was described by Andres Karpathy, one of the founders of OpenAI, as a frontier grade LLM trained on a joke of a budget. यहाँ से भी उसने मेंशन कर लिया फ्रंटियर ग्रेड एलएलएम मतलब बढ़िया कमाल का है ये एलएलएम, लेकिन बना कैसा है, जोक ऑफ अ बजट, मतलब इन नॉमिनल अमाउंट पे नॉमिनल खर्चे पे ये बना दिया है चाइना ने। ना मियर, देखो नॉमिनल ये मियर हो गया वर्ड, $6 million compared to the over $500 million that OpenAI has reportedly spent on ChatGPT. January 20 debut of R1, a reasoning model developed on a shoestring budget. Again, the author is mentioning this shoestring budget, trained on a joke of a budget. तो ऑथर का पूरा पॉइंट ही इस तरफ आ रहा है कि चाइना ने जो डेवलप किया है उससे पूरी दुनिया सरप्राइज, अमेज, इन वंडर, इन ऑ सब है, लेकिन कमाल की बात यह है कि बजट नॉमिनल, मियर, राइट, जोक ऑफ अ बजट, शू स्ट्रिंग बजट। तो शू तो कितने का भी आएगा, लेकिन शू को बांधने वाले जो लेसेस होते हैं, जो शू स्ट्रिंग्स होती हैं, उतने में आ जाएगा वो। तो इट इज लाइक अ मेटाफोरिकली कंपेयरिंग. So with secondary chips which can nonetheless perform as well as OpenAI's most advanced model shook one of the central tenets of AI development in US. इससे यूएस को ऐसे झटका लगा, कौन सा टेनेट्स का मतलब होता है प्रिंसिपल्स, यूएस के कौन से प्रिंसिपल्स को झटका लगा कि अगर आपको ये बड़ा एडवांस टेक्नोलॉजी कुछ करना होगा तो ज्यादा खर्चा भी करना होगा, लेकिन चाइना ने इसे गलत साबित कर दिया, उसने कम खर्चे पे बहुत बढ़िया काम कर लिया है. सो इट टेक्स बिलियंस ऑफ डॉलर्स टू प्रोड्यूस कटिंग एज टेक्नोलॉजी. दिस इज व्हाट द मिथ ऑफ यूएस वाज, राइट, एंड दिस इज व्हाट इज ब्रोकन नाउ बाय चाइना. सो दिस इज द V3 मॉडल. ठीक है, ये अभी हमें समझ में नहीं आएगा, ये सब आपको दिखा दिया, ऐसे बहुत सारी इमेजेस थी, बट आई सिलेक्टेड दिस वन. जो इंटरेस्टेड है वो करेंगे. हाँ, बीच में उन्होंने अलीबाबा और ये सब भी चीजें मेंशन की थी, ऑल दीज थिंग्स आर फ्रॉम चाइना. तो लाइक दिस इज व्हाट इट इज. Now, the lack of access to first-rate chips couldn't hinder DeepSeek also shows the limits of America's small yet high fence. ठीक है, फर्स्ट रेट चिप्स उन्होंने मना किया था, यहाँ पर भी उन्होंने कहा था कि ये सेकंड रेट चिप्स हैं. तो सेकंड रेट चिप्स से भी हमें परफॉर्मेंस वैसा ही मिल रहा है जैसे ओपन एआई मोस्ट एडवांस मॉडल का था, राइट. सो दिस इज व्हाट इज नाउ दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन दे वर रिफ्यूज्ड, बैन लग गया था फर्स्ट रेट चिप्स पर, तो सेकंड रेट चिप्स यूज की, बट दिस डिड नॉट हिंडर डीप सीक from coming up with something new, right? So it also shows the limits of America's small yard high fence. तो स्मॉल यार्ड हाई फेंस का मतलब होता है काम तो छोटा सा है, लेकिन फेंसेस आपने इतने बड़े लगा रखे, बैन इतना कुछ कर लिया है, प्रोहिबिट इतनी सारी चीजें कर ली हैं कि वो उस छोटे से काम के हिसाब से दे डू नॉट मैच. नाउ दिस इज द अप्रोच ऑफ यूएस. Smaller, nimbler competitors could easily get within heel snapping distance. निम्बलर यानी वो बड़े फटाफट चलते हैं, जो निम्बल, निम्बल उसको कहते हैं एजाइल. ठीक है, so these people can come up with a heel snapping distance, बड़ा आसानी से तुम्हारा पीछा करते हुए they can come very near to you in the race. The open source strategy adopted by Chinese labs, including DeepSeek, as opposed to the proprietary model favored by those in the US, except notably Meta, also hints at another way in which the rules of the game could be rewritten. ये हो सकता है कि अब चाइना विल स्टार्ट रूलिंग द रूस्ट, यू कैन से. ठीक है, तो मतलब यूएस को अपनी पकड़ मजबूत बनानी पड़ेगी, तो उसे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा. यहाँ पे दो चीजें आई हैं समझ में कि चाइना में ओपन सोर्स स्ट्रेटेजी है और यूएस में वो क्लोज्ड वाला थी, स्मॉल यार्ड हाई फेंस वाली बात चल रही थी. प्रोप्राइटरी मॉडल है, प्रोप्राइटरी अपने कहीं ना कहीं किसी ने कॉमर्स में इकोनॉमिक्स में पढ़ाई होगा, ये मॉडल मतलब हमने बनाया तो वी आर द सोल ओनर्स देयर. तो ऐसे ही यूएस ने कुछ बनाया तो यूएस इज द सोल ओनर उस हिसाब से, जबकि ओपन सोर्स मॉडल चाइना ने जो डेवलप किया दैट इज ओपन देन. So now China can come up with something, or it can be rewritten. The game could be rewritten by China as more global talent, and indeed other countries nursing their own AI ambitions gravitate towards free to use models. तो चाइना जो डेवलप कर रही है फ्री टू यूज करेंगी वो, तो बाकी के देश जो उसको यूज करने में आगे आएंगे ही सही. दिस इज व्हाट द पर्सन सेज. ठीक है, दिस वाज दैट V3 मॉडल का एक और हिस्सा ना, वेक्टर आउटपुट लेयर है
आउटपुट वेक्टर, हिडन लेयर एंड इनपुट वेक्टर। ये एलएलएम जो उन्होंने फर्स्ट पैराग्राफ में दिया था। तो इंडिया विच टॉक्स ऑफ बिल्डिंग सोवरेन एआई may find hope in the deep seek story that it is possible to do more with less। ये है डीप सीक की कहानी, possible to do more with less, yet even as it puts its weight being the ambition and talent of the homegrown tech sector and puts in the rupees 10,300 crore committed under the India AI mission in March 2024, the government must also find a way to ensure access to the best AI hardware। ये भी चाहिए क्योंकि इतना तो उन्होंने फंड्स तो दे दिया इस रिसर्च में, और ये भी बोला है कि नहीं हमें अपने होम ग्रोन मतलब घर से बना हुआ जो होना चाहिए। तो ये एआई सेक्टर या टेक सेक्टर इंडिया का काफी स्ट्रांग है, तो इट शुड बी लाइक डोमेस्टिक ओनली। दिस इज व्हाट इंडिया होप्स फॉर, बट स्टिल इट नीड्स द बेस्ट एआई हार्डवेयर। सो इफ द फ्यूचर विल बी डिफाइंड बाय एआई देन इंडिया मस्ट बी अ पार्ट ऑफ इट। तो इंडिया को भी पीछे नहीं रहना चाहिए, इंडिया को भी आगे बढ़ते रहना चाहिए। दैट इज व्हाट इट इज। ठीक है। सो एलएलएम क्या होगा? डीप लर्निंग एल्गोरिथम that is equipped to summarize, translate, predict and generate human sounding text to convey ideas and concepts. So the passage done. Now the main idea we know, it's a new battlefield। अब जंग कहाँ होगी? एआई के फील्ड में। तो ये हो गया बैटलफील्ड। और ये these are the questions now, what is happening? पर यूएस सफर कर रही है, ये हमें देखना है ज्यादा। ठीक है। It has shrunk. So this was the main point, that the rise of China in this sector is causing a decline in the importance of US। So ये आ जाता है हमारे पास first point, right? So now the next thing is like supporting it. तो चाइना ने जो किया, what is happening? It is affecting the whole world। तो ये जो बात है, चाइना इंक्रीज हो रहा है इधर से, तो व्हाई इज इट गोइंग टू इंक्रीज? बिकॉज वट एवर चाइना इज डूइंग affecting the world is affected, right? Then this is what all China has done। और यहां से एक बात आ जाती है, that with less more can be done। ये आपके पास हो गया सेकंड पॉइंट ऑफ द पैसेज। ठीक है, क्योंकि बजट की बात हो रही थी ना यहाँ पे पूरा। नाउ अगेन द सेम थिंग, दैट चाइना कैन लीड नाउ, ये दिख रहा है हमें। ठीक है, एंड देयरफॉर अदर कंट्रीज विल आल्सो बी फॉलोइंग इट और मूविंग टुवर्ड्स इट। तो अगर चाइना है लीडर, अभी है नहीं, मतलब अगर चाइना आगे बढ़ती जाएंगे तो बाकी की कंट्रीज भी इसकी तरफ आती जाएंगी, चाइना की तरफ आती जाएंगी। That means they'll start using what China is giving। Okay. This was again the point established, a lot can be done, more can be done with the use of less, right? And then comes the main idea also there, that India should keep an eye open, right? If India has to develop its own AI, तो उसे देखना पड़ेगा कि किस तरीके से इन्हें हार्डवेयर और ये सब मिल रहा है। तो अब देखना पड़ेगा कि चाइना क्या कर रही है। तो इन्हें ऑल्सो शुड नॉट बी आउट ऑफ द रेस। इंडिया को भी अगर रेस में बने रहना है तो इट हैज टू कीप इट्स आईज एंड इट्स टेक्नोलॉजी सेक्टर on its toes। So Chinese lab has shaken the core tenet of AI development, showing more can be done with less। India must take note। ध्यान रखना चाहिए इंडिया को। ठीक है, शेकन पूरी दुनिया हिल गई है इससे। ये बात तो उसने ऑथर ने किस तरीके से बोली, और वो भी यही कि कम पैसों में ज्यादा करना, more can be done with less। That was the main point। So India, which talks of building sovereign AI, we find hope in the DeepSeek story that it is possible to do more with less। तो यहाँ से दो बातें, this is an important line from the paragraph only, passage only, that yes, India has to keep in mind that if we need to come up with a domestic tech AI, right? So वैसे भी बजट का रहता है, तो उसको बड़ा सेंसिबली यूज करना, और कैसे यूज कर रहा है चाइना, उस हिसाब से हमें भी अप्लाई करना चाहिए।
Nothing bad in learning. Oh, vocabulary. This section, this passage today, article today had a very beautiful set of words. तरीका ऑथर का बड़ा अलग था लिखने का, ठीक है, और उसमें देखो उसने कई सारे phrases और कई सारे metaphorical usages किए हैं, ठीक है. So it was a light-hearted one, but then it came up with very smart view, ठीक है, कि करना क्या है. तो इंडिया को ध्यान रखना है किस बात पे. चाइना ने जो किया है उसे यूएस भी अचंभित हो गई है कि यूएस कर क्या रही है. मतलब यू आर स्पेंडिंग सो मच एंड देन गेटिंग द सेम थिंग एज चाइना also achieved the same thing but by spending just a fraction of it. So India has to be like a spectator. India has to see what is being done here. So then India is going to climb the wagon. वो करना पड़ेगा इंडिया को. तो यहाँ पे न्यू बैटलफील्ड जैसे से ये मेटाफोरिकल है. जंग जहां पे होगी एआई सेक्टर में होगी अब, ठीक है. हाँ, यहाँ पर एक मिनो वर्ड है, ठीक है. ऐसे कोई ज्यादा आए नहीं थे हमारे पास वर्ड्स, बट मिनो वर्ड इज लाइक somebody who is just a name, छोटा सा है नाम, मतलब very insignificant sort of person, ठीक है. फिर ये जो था drained on a joke of a budget. This is like a shoestring budget. ये मैंने उसमें भी मार्क कर लिए थे आपके, ठीक है. टिनेट्स का मतलब होता है प्रिंसिपल. Cutting edge technology is something that is making quite a change, a new part, you can say. वो कटिंग एज होता है. रिपल्स हम पहले कर चुके हैं, जब एक वेरी स्टिल वाटर इन द लेक एंड व्हेन यू थ्रो अ स्टोन देयर, तो हाउ द रिपल्स आर फॉर्म्ड, ठीक है. सो दैट वे इट वुड गो लाइक दिस. ऐसे जो बाहर की तरफ जाते हैं वो रिपल्स हो जाएंगे. यू जस्ट थ्रो वाटर हियर, so you throw a stone here and then ripples are formed. Nimbler is agile. Heel snapping, distance, heel snapping is quickly following. ठीक है, वहां तक एकदम पास, क्विकली एंड दैट टू फॉलोइंग नियर. आसानी से एकदम पास. हील हील पे जैसे एकदम पाव लगता है, एक यहाँ पे दौड़ लगा रहा है, दूसरा उसी के पीछे है बिल्कुल, जैसे कई बार ओलंपिक्स में होते हैं. एक स्टेप का बस डिफरेंस होता है, तो दैट इज इट. तो हील स्नैपिंग डिस्टेंस, दैट मीन्स दे आर गोइंग टू कम अप वेरी क्लोज नाउ. Ensure access to the best AI hardware, ये हमें करना था. Access to becomes a phrase here, ठीक है. हमने phrasal verbs लिखना शुरू किया है ना, तो you can write this. To find a way to ensure access to something. Come on. Now, vocabulary words हमें मतलब interesting phrases थे जो मैंने पढ़ते के टाइम पे underline कर लिए थे, ठीक है. And these are the articles that you have to read today. Why so? Because busting free trade myths, ये economics based है, ये आपको काम आ जाएगा. क्यों? क्योंकि अभी बजट का दौर शुरू होने वाला है, तो यू विल फाइंड मेनी आर्टिकल्स बेस्ड ऑन इकोनॉमिक्स नाउ. Diminishing the university, this is based on education. Again you have a different genre here. हमने उस दिन किया था, कल या परसों ही किया था, एसर वाला जो था. आई थिंक सो इट वाज yesterday only, right? Where we came up with classroom success. Yes. So एसर वाली बात होगी, तो ये थोड़ा बहुत एजुकेशन से रिलेटेड है, तो यू कैन कम अप विद दैट. पर कल तो हमने एसर की बात की थी, यूनिवर्सिटी की बात पहले हो गई थी, right? So just a few days back only we had done about university regulations and all. So read that. And a much needed thought. This is I think so based on India and China, कुछ relations की बात है उसमें. India, UK, India, China, कहीं ना कहीं यहाँ पे comparisons होंगे आपके. So you need to like geopolitical हो जाएगा ये. तो तीन अलग अलग genres हो जाएंगे. So that will be best for you to read.
in a day and at a stretch. So thank you, and that's all for today. So stay logical and stay positive. Be logical and be positive also. Okay? Even if you're finding it a little difficult to read all these articles, take your time but do read them. तो difficulty होगी तो करते करते हम उसे overcome भी कर सकते हैं. So that's all we need to do. Thank you and see you soon.